آج ہم جن ماخذ پر بات کر رہی ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کا نام ہم اکثر ایک مذہبی رہنما کے طور پر سنتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ لیکن یہ تحقیق جو اسٹراسبرگ فرانس کی ایک کمیٹی کی ہے انہیں ایک بالکل مختلف روشنی میں دکھاتی ہے، ایک فلسفی اور یہاں تک کہ ایک سائنسدان کے طور پر۔ بالکل، اور یہی اس پوری گفتگو کا سب سے دلچسپ پہلو ہے کہ 8ویں صدی کی ایک شخصیت بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے کیسے کائنات کے ان رازوں پر بات کر رہی تھی جنہیں سائنس نے بہت بعد میں 19ویں اور 20ویں صدی میں جا کر دریافت کیا۔ تو ماخذ اس کی کیا وضاحت کرتا ہے؟ یہ علم آیا کہاں سے؟ دیکھیں، ماخذ کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ یہ علم روایتی ذرائع سے نہیں آ سکتا تھا، تو وہ اسے علم لدنی کہتے ہیں، یعنی خدا کی طرف سے براہ راست عطا کیا گیا علم۔ اچھا، تو وہ آئیے اسی پہلو کو ذرا کھولتے ہیں۔ ہم ان کی شخصیت کو 3 حصوں میں دیکھیں گے جیسا کہ ماخذ میں بیان کیا گیا ہے، پہلے بطور ایک مذہبی رہنما، پھر ایک فلسفی، اور آخر میں وہ سائنسدان جن کے نظریات آج بھی حیران کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں ان کے بنیادی کردار سے۔ مدینہ میں 82 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور اس وقت مسلم دنیا ایک کہہ لیں کہ بڑے نظریاتی انتشار سے گزر رہی تھی۔ جی، اور ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہی آیا۔ کچھ گروہ تھے جنہیں غلات کہا جاتا تھا، وہ اماموں کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہیں انسانیت کے دائرے سے ہی نکالنے لگے۔ اچھا، انہیں خدائی صفات کا حامل سمجھنے لگے تھے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی خطرناک موڑ تھا کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی توحید پر براہ راست حملہ تھا۔ تو یہ تو صرف ایک نظریاتی اختلاف نہیں تھا، یہ تو پورے عقیدے کی بنیاد کو ہلا سکتا تھا۔ انہوں نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ کیا صرف فتویٰ دے کر یا؟ نہیں، صرف فتویٰ نہیں بلکہ ان کا اصل زور دلیل پر تھا۔ انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ انبیاء اور ائمہ خدا کے بہترین اور منتخب بندے ہیں، لیکن ہیں بندے ہی، ان میں خدا کا کوئی جوہر یا حصہ شامل نہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت طاقتور مثال دی۔ وہ کیا تھی؟ عیسائیت کی تاریخ سے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے سے وہ امت تقسیم ہو گئی اور اصل پیغام ہی کہیں گم ہو گیا۔ واہ، یعنی وہ اپنے پیروکاروں کو اسی تاریخی غلطی سے بچا رہے تھے۔ بالکل، وہ صرف ایک مسئلے کا حل نہیں دے رہے تھے بلکہ اس کے طویل مدتی نتائج بھی دکھا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سماجی رسومات تھیں جن کی وہ مخالفت کر رہے تھے؟ جی ہاں، اور یہ ان کی سماجی بصیرت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے رہبانیت یعنی دنیا کو ترک کر دینے اور تجرد یعنی شادی نہ کرنے کی سختی سے مخالفت کی۔ لیکن شادی نہ کرنا یا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ تو ذاتی فیصلے لگتے ہیں۔ امام کے نزدیک یہ ذاتی فیصلے نہیں تھے۔ انہوں نے اسے 2 سطحوں پر دیکھا، ایک تو مذہبی سطح پر کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، صحیح، اور دوسری جو زیادہ دلچسپ ہے وہ سماجی سطح تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر مسلمان شادی کرنا اور نسل بڑھانا چھوڑ دیں گے تو مسلم معاشرہ کمزور ہو جائے گا اور ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ایک سماجی مفکر کے طور پر معاشرے کی بقا کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جی، وہ صرف عقائد کی نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کی سماجی اور ثقافتی شناخت کی بھی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ پہلو واقعی بہت اہم ہے۔ اب ان کی شخصیت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، ان کا فلسفیانہ کردار۔ ماخذ میں ابو شاکر نامی ایک دہریے کے ساتھ ان کے مکالمے کا بڑا تفصیلی ذکر ہے، اور یہ مکالمہ ایک طرح سے ان کے پڑھانے اور سمجھانے کے طریقے کو بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ روزانہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور درس کے بعد کا وقت سوال و جواب کے لیے کھلا ہوتا تھا، کوئی بھی آ کے سوال کر سکتا تھا۔ یہ تو بہت غیر معمولی بات ہے اس دور کے لحاظ سے۔ بہت غیر معمولی۔ تو ابو شاکر کا بنیادی اعتراض کیا تھا؟ اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کی دلیل بہت سیدھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اس خدا کو کیسے مان لوں جسے میں اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتا، مطلب جو چیز نظر نہ آئے، سنائی نہ دے، اس کا کوئی وجود نہیں۔ اور اس نے امام پر ذاتی حملہ بھی کیا ہے نا؟ جی ہاں، اس نے الزام لگایا کہ آپ یہ غیر مرئی خدا کا تصور بیچ کر اصل میں دولت اور عزت کما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذاتی حملے کا جواب تو انہوں نے بہت خوبصورتی سے دیا، اپنی سادہ زندگی کی مثال دی اور کہا کہ اگر مجھے دولت چاہیے ہوتی تو میرے پاس کیمیا اور دوسرے علوم ہیں، میں آرام سے امیر بن سکتا تھا۔ جی، اس سے انہوں نے ایک طرح سے بحث کے لیے میدان صاف کر دیا، اپنی نیت واضح کر دی۔ لیکن اس کی اصل منطقی دلیل کا انہوں نے کیا جواب دیا کہ جو دکھتا نہیں وہ ہوتا نہیں؟ یہیں سے مکالمہ ایک
नाकाबिले यकीन रुख इख्तियार करता है। शाकिर की ही मंतिक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने सवालात पूछना शुरू किए। उन्होंने पूछा, अबू शाकिर, क्या तुमने कभी अपने जिस्म के अंदर बहते हुए खून को देखा है या अपने मैदे को खाना हजम करते हुए महसूस किया है? वाह, यानी उसी के उसूल से उसी के नजरिए की बुनियाद को कमजोर कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारा अपना वजूद ही ऐसी अनगिनत नादीदा हकीकतों पर कायम है जिन्हें हम हवास से महसूस नहीं कर सकते। ये तो था मंतकी जवाब। जी, ये पहला कदम था। लेकिन फिर वो दूसरे कदम की तरफ बढ़े जो साइंसी दलाइल पर मबनी था। उन्होंने कहा, जमीन पर पड़ी घास को देखो, क्या ये खुद ब खुद उगाती है या इसके पीछे एक पूरा निजाम काम कर रहा है? बीज, मिट्टी, सूरज, हवा, पानी। फिर उन्होंने एक पत्थर की मिसाल दी और कहा, यह बेजान नजर आने वाला पत्थर भी अंदर से खाली नहीं, इसमें भी हरकत जारी है। और क्या तुम जानते हो कि तमाम पत्थर एक जमाने में माया हालत में थे? ये तो आज की जियोलॉजी का बुनियादी उसूल है। कमाल है कि एक दहरिये से बहस में भी वो साइंसी मिसालें दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा। उनके लिए फलसफा, मजहब और साइंस अलग अलग खाने नहीं थे। वैसे इस मुकालमे का नतीजा क्या निकला? क्या अबू शाकर फौरन कायल हो गया? नहीं, और माखज़ के मुताबिक यही इस मुकालमे की असल खूबसूरती है। वो फौरी तौर पर कायल नहीं हुआ, लेकिन वो गहरे शक में पड़ गया। उसका यकीन हिल चुका था। अच्छा। इस मौके पर इमाम ने वो तारीखी जुमला कहा, बुत परस्ती के बारे में शक अल्लाह की इबादत का आगाज है। यानी उनका मकसद फौरी तौर पर किसी को तब्दील करना नहीं, बल्कि सोच का बीज बोना था। बिल्कुल, एक अजीम उस्ताद की यही निशानी है। अब हम इस गुफ्तगू के इस हिस्से की तरफ आते हैं जहां माखिज ऐसे दावे करता है कि एक लम्हे के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इमाम जाफर सादिक के साइंसी नजरियात। जी हाँ, फल्कियात से शुरू करते हैं। ठीक है। माखज़ के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में बतलीमुस यानी पिटोलमी के नजरिए को चैलेंज कर दिया था। बतलीमुस का नजरिया यानी ये कि जमीन कायनात का मरकज है और सूरज इसके गिर्द घूमता है। जी, वही नजरिया जो तकरीबन 1800 साल तक साइंस की दुनिया में एक नाकाबिले तरदीद हकीकत माना जाता रहा। और उन्होंने इसे चैलेंज कैसे किया? उनकी दलील क्या थी? दलील बहुत सादा और मंतिकी थी। उन्होंने कहा कि अगर सूरज जमीन के गिर्द घूमता है तो उसे रात को गायब क्यों हो जाना चाहिए? उसे तो मुसलसल नजर आना चाहिए। बात तो ठीक है। ये एक ऐसा सवाल था जिसका बतलीमूसी निजाम में कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने अपना नजरिया दिया कि सूरज अपनी जगह पर कायम है और जमीन इसके गिर्द घूमती है। एक मिनट, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये तो कोपरनिकस और गैलीलियो वाली बात हो गई। जी, लेकिन सदियों पहले, और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जमीन अपने महवर पर भी घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ये तो एक फिक्री इनकलाब था। इस एक नजरिए को मानने का मतलब था कि सदियों से कायम पूरे यूनानी फलसफे की बुनियाद को मुस्तरद कर दिया जाए। बिल्कुल, और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने ये नजरिया भी पेश किया कि कायनात साकिन नहीं है, ये कभी फैलती है और कभी सिकुड़ती है। बिग बैंग और ब्लैक होल्स वाली थ्योरी 8वीं सदी में। माखज़ यही दावा करता है। ये सोचना भी महाल है कि उस दौर में कोई शख्स ये बातें कैसे कर सकता था। अच्छा, अब तबीयत और कीमिया की तरफ आते हैं। अरस्तू के 4 अनासिर का नजरिया, मिट्टी, पानी, आग और हवा, ये भी हजारों साल तक इल्म की बुनियाद समझा जाता रहा। जी, और माखज़ कहता है कि इमाम ने 12 साल की उम्र में से भी रद्द कर दिया। उन्होंने फरमाया कि मिट्टी, पानी और हवा खुद बुनियादी अनासिर नहीं है, बल्कि ये कई अनासिर का मुरक्कब है। खास तौर पर हवा के बारे में उनका नजरिया बहुत दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा कि हवा में मौजूद तमाम गैसें सांस लेने के लिए जरूरी हैं। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, क्योंकि हम तो स्कूल में यही पढ़ते हैं कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। ये कहना कि बाकी गैसें भी जरूरी हैं। बिल्कुल। और देखें, 1100 साल बाद जब लवाजियर ने ऑक्सीजन दरियाफ्त की, तब भी साइंसदान यही समझते रहे कि सिर्फ ऑक्सीजन ही जिंदगी के लिए जरूरी है। 19वीं सदी में जाकर यह साबित हुआ कि अगर इंसान खालिस ऑक्सीजन में सांस ले तो उसके अंदरूनी आज़ा जल सकते हैं। हवा में मौजूद नाइट्रोजन उसे मुतवाजिन रखती है। यानी वही बात जो इमाम ने सदियों पहले कही थी। अच्छा, रोशनी के बारे में भी उनका नजरिया बिल्कुल इनकलाबी था। जी,
उस वक्त तक यूनानी फिलोसोफरों का ख्याल था कि रोशनी आंखों से निकलकर चीजों पर पड़ती है। जादुई कहानियों की तरह लगता है ये। है ना? इमाम ने इसके बरक्स कहा कि रोशनी अशिया से टकराकर हमारी आंखों में दाखिल होती है, तब हमें दिखाई देता है। और इसी एक नजरिए ने तो सदियों बाद दूरबीन और माइक्रोस्कोप जैसी इजादात की बुनियाद रखी। बिल्कुल। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि रोशनी की एक ताकतवर शुआ भारी चीजों को हरकत दे सकती है, यानी आज की लेजर टेक्नोलॉजी। ये दावा तो बहुत ही बड़ा है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। माखज़ इसे एक बराह रास्त नजरिए के तौर पर पेश करता है, लेकिन वो इसकी असलियत या मतन के बारे में मजीद तफसील नहीं देता। अच्छा, ये इन मकामात में से एक है जहां माखज़ कारी पर इन्हिसार करता है कि वो इस दावे को इल्म लुदनी के वसीत और फ्रेमवर्क में कबूल करें। और फिर मादा और जिद मादा यानी मैटर एंड एंटी मैटर का नजरिया कि अल्लाह के सिवा हर चीज का एक मुतजाद वजूद है। जी, और माखज़ के मुताबिक ये सिर्फ एक फलसफियाना बात नहीं थी, बल्कि एक साइंसी हकीकत का बयान था कि जब ये दोनों टकराते हैं तो फना होकर खालिस तवानाई में तब्दील हो जाते हैं। यानी आइंस्टाइन की मशहूर मसावात E=mc² की अमली शक्ल। बिल्कुल। ये नजरियात वाकई जहन को सुन कर देते हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर ये इल्म उस वक्त मौजूद था तो ये तारीख का हिस्सा क्यों नहीं बना? ये दुनिया तक फैला क्यों नहीं? ईफा अल-मंसूर इमाम जाफर सादिक के बढ़ते हुए इल्मी और अवामी असर और रसूख से एक तरह से खौफजदा हो गया था। उसे लगा कि ये असर उसकी खिलाफत के लिए खतरा है। तो उसने क्या किया? उसने दो बड़े कदम उठाए। पहला, उसने सरकारी सरपरस्ती में यूनानी फलसफे के तर्जुमे शुरू करवाए। अरस्तु, अफलातून, बतोलिमस, इन सब के काम को आम किया गया ताकि लोगों की तवज्जो इमाम से हटकर इन यूनानी मुफक्किरीन की तरफ हो जाए। यानी एक तरह का इल्मी मुकाबला शुरू कर दिया। जी। और दूसरा और ज्यादा तबाहकुन कदम यह था कि उसने इमाम की कायम करदा अजीम यूनिवर्सिटी, जिसे मदीना एकेडमी कहा जाता है, उसे बंद करवा दिया। तो माखिज का इस्तिदलाल ये है कि इस सियासी फैसले की वजह से दुनिया साइंसी तरक्की में 1000 साल पीछे चली गई। बिल्कुल। ये माखिज का मरकजी दावा है कि वो तमाम नजरियात दबा दिए गए और दुनिया को दोबारा उन हकीकतों तक पहुंचने के लिए कूपरनिक्स, गैलीलियो और न्यूटन का इंतजार करना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा दावा है। अच्छा, हयातियात और तिब की तरफ आते हैं, जहां उनकी बातें इतनी ही हैरान कुन हैं। जी, उन्होंने फरमाया कि जमीन में पाए जाने वाले तमाम अनासिर इंसानी जिस्म में भी मौजूद हैं, लेकिन एक खास तनासुब से। 4 अनासिर बहुत ज्यादा मिकदार में, 8 कम मिकदार में और 8 बहुत ही कम मिकदार में। जदीद साइंस ने इन तमाम 20 अनासिर और उनके तनासुब की हूबहू तस्दीक की है। और माओं के लिए उनकी वो नसीहत तो कमाल की है कि नौज़ायदा बच्चों को हमेशा अपनी बाईं जानिब सुलाएं। जी, और सदियों तक लोग इसकी हिकमत नहीं समझ पाए, बल्कि कुछ लोग इसे खतरनाक भी समझते थे कि शायद बच्चे का दिल दब जाए। बिल्कुल। लेकिन 20वीं सदी में अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी में एक तहकीक हुई और इससे ये साबित हुआ कि बच्चा माँ के रहम में 9 महीने तक उसके दिल की धड़कन सुनने का आदी होता है। ये आवाज उसके लिए सुकून और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। अच्छा, तो पैदाइश के बाद जब माँ उसे अपनी बाईं जानिब सुलाती है तो वो वही जानी पहचानी धड़कन सुनता है जिससे वो खुद को महफूज महसूस करता है और गहरी पुरसुकून नींद सोता है। ये हैरान अंगेज है। एक बज़ाहिर छोटी सी नसीहत के पीछे इतनी गहरी साइंसी और नफ्सियाती हकीकत। आज हमने इमाम जाफर सादिक को सिर्फ एक मजहबी पेशवा के तौर पर नहीं देखा, बल्कि माखज़ की रोशनी में उन्हें एक कसीरुल जहद शख्सियत के तौर पर समझने की कोशिश की है। एक फलसफी, एक साइंसदान। और ये सब हमें वापस माखज़ के इसी मरकजी नुक्ते पर ले आता है कि ये इल्म आया कहाँ से। चूंकि उस दौर में तजुर्बात के लिए दरकार आलात मौजूद नहीं थे, इसलिए तहकीक का नतीजा यही है कि ये इल्म लुद्दीनी था। ये रवायती साइंसी तारीख के पूरे बयानिए को चैलेंज करता है, जो उन तमाम दरियाफ्तों का सेहरा सदियों बाद आने वाली यूरोपीय साइंसदानों को देता है। बिल्कुल। ये गुफ्तगू वाकई जहन के बहुत से बंद दरवाजे खोल देती है। माखज़ में एक आखिरी बात का जिक्र है जो एक बहुत गहरी सोच छोड़ जाती है। वो क्या है? वहाँ लिखा है कि इमाम बिजली के इस्तेमाल के बगैर पानी को उसके अज्जा यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग करने का तरीका जानते थे, लेकिन उन्होंने ये इल्म किसी को नहीं सिखाया। क्यों?
یہ تو توانائی کا ایک لامحدود ذریعہ ہو سکتا تھا۔ کیونکہ ماخذ کے مطابق وہ جانتے تھے کہ اگر یہ علم غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کا استعمال انسانیت کی بھلائی کے بجائے تباہی کے لیے ہوگا۔ یعنی ہائیڈروجن بم جیسی تباہی؟ شاید وہ اس کی دھماکہ خیز صلاحیت کو بھانپ چکے تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے، علم، ذمہ داری اور کسی دریافت کے ظاہر ہونے کے صحیح وقت میں کیا تعلق ہے؟ کیا ہر علم کو فوری طور پر ظاہر کر دینا چاہیے، یا کچھ علم انسانیت کی بھلائی کے لیے پردے میں ہی رہنا چاہیے جب تک انسان اس کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے؟